जैसे जैसे कम्युनिटास की सप्लाई जैसे जैसे रिड्यूस होगी, साथ में हमें रिवार्ड के तौर पे कॉम की तरफ से वो दिया जाएगा 36% एपीआई सालाना बोल सकते हैं। तो रही बात इसके प्रोजेक्ट्स की, तो वो हमें प्राइवेट मेंबर होने का ये बेनिफिट मिलता है किसी भी प्रोजेक्ट में। वो हमें मेंबरशिप के लिए एक गारंटेड अलोकेशन देते हैं, जितने हमने कम्युनिटास के कॉम हमें जितने भी स्टैकिंग कर रखे हैं उसी के हिसाब से वो हमें पार्टिसिपेशन के लिए एक फिक्स वो दे देते हैं वैल्यू, जिससे जितने ज्यादा कॉम हम स्टैकिंग पे होंगे उतने ही ज्यादा हम उसको किसी भी प्रोजेक्ट की अलोकेशन हम प्राइवेट मेंबर के तौर पे हासिल कर पाएंगे। जी कुलदीप जी। चेतन जी शायद लाइन पे है नहीं अभी फिलहाल। हाँ, माइक उनका जो है ड्रॉप हो गया है, शायद नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है। सो गाइस, मिस्टर कुलदीप ही आंसर्ड अबाउट प्राइवेट पार्टनर that if being a private partner, it means that it is going to help in three ways. How? See, the first benefit of being a private partner is that once once I stack, let us say 500,000 COM tokens. So and let us say I stack it for 3 months. There is option 1 month, 2 month, or 3 month. If I choose 3 months, so it is going to give me interest on that stacking, that is around 36%. So you can imagine that if I stack of COM token of worth of, let us say, uh, $1,000 or 500,000 COM tokens, so it is going to give me some extra after 3 months as a stacking reward. That is one point. Number two, Mr. Kuldeep, he told about the benefit of being a private partner is that once you stack and become a private partner, now you are also eligible to take participation into all the private sales of new projects which are coming on launch, Communitas Launchpad, as well as eligible to take participation into all public sales, NFT sales, or any other kind of activity. Also, let me tell you here that there are sometimes very potential project which we cannot disclose in publicly, but it is beneficial for community. Then we bring those projects to our private partners. That is second benefit. Now, the third benefit about being a private partner is that once you become a private partner, now you are eligible to receive USDC stable coin every 3 months. You will be able to receive USDC stable coin free every 3 months, and it will be according to how much token you have stacked and how much fees Communitas has collected from first come first serve round and community round. The collected fees is distributed, 30% of those fees is distributed into private partners who have stacked their token. So this USDC collected fees, USDC 30% of that fees will be going to the private partners. So these are three benefits of being a private partner. Thank you guys. So let me okay, Mr. Kuldeep, you can come on mic. एक बात और कहना चाहूंगा रिजवानी भाई, मेरे जितने भी यहाँ मेरे दोस्त साथी हैं, इस ये मान के चलो अगर कोई भी प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में प्राइवेट या एक आईक्यू आईडीओ के अंदर आता है, तो हमें प्राइवेट मेंबर होने का सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि हमें जो उसकी वैल्यू होती है इनिशियल, अगर हम इन्वेस्टमेंट कोई भी प्रोजेक्ट की है तो वो वैल्यू बहुत ही कम ठीक ठाक रेट पे मिल जाती है। उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट पब्लिक सेल के अंदर आता है या किसी भी ये मान के चलो सेंट्रलाइज एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे जैसे लॉन्च होता है, तो उसकी वैल्यू काफी एक्स का मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हमें वो कम वैल्यू के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाती है।
Yeah, very good point, Kuldeep bro. Kuldeep bro is telling that uh, when new projects are coming, the price of the token is very, very low in private sale and in public sale as well. So if you take entry into those at that stage, in the private stage or the public stage, then you capture the opportunity of taking your participation, taking your share into that project at very low cost. And after that one, once it is listed and it is going to different exchanges, let us say decentralized exchange or centralized exchange, whatever exchanges it goes, the price of the token goes high and high. So, and simultaneously project also starts working, starts functioning, so the demand of the project also goes high. Now you can see example as iStep. The iStep project, it got demand, and now the price is going high and high. Let me here put one more example about Ethereum. The Ethereum private sale, it was sold in $0.3. In the private round, it was sold at $0.3, and now you can see, just imagine the price of the token, which is, for example, if somebody has participated, let us say in $10, if he has taken, so he would have bought around, let us say, around 30 Ethereum in the private round. In $10, if somebody who participated in private round of Ethereum, so in $10 he would have purchased around 30 Ethereum, which is, now you can imagine the price, you can do the calculation. So this is the potential of participating into early projects. And there are so many projects which are coming daily, and there are all the informations which are shared on our launchpad. So this is the benefit of being into early projects, grabbing opportunity when it is going publicly. Before that one, it is always good. This is what Mr. Kuldeep bro is telling to us. Yes, Mr. Kuldeep bro, please. रिजवानी सर, देखो मेरे यही बात थे। दूसरा देखो, इन्वेस्टर के हितों का ख्याल भी रखा जाता है, जैसे मैंने बताया प्रायोरिटी प्रोजेक्ट लेके आए जा रहे हैं, तो इसमें देखो हमें डाउन जाने की या नुकसान होने की संभावनाएं भी खत्म ऑलमोस्ट हो ही जाती हैं। सेकंड ये है कि देखो, एक बात मान के चलो, अगर 10 कंपनियां किसी मार्केट के अंदर आती हैं तो ये मान लो कि सब की सब कामयाब हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा मानना है कि 10 में से अगर एक भी कामयाब हुई जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, तो वो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कई मल्टीप्लेक्स यानी कई गुना कर देगी। तो ये निश्चित हो जाइए, अगर प्राइवेट मेंबर बनते हैं तो उसका लॉस होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं मेरे भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि वो आइए और हमारे देश की तरफ से कम्युनिटास का जो लॉन्च पैड है उसके ऊपर पार्टिसिपेट में प्राइवेट मेंबरशिप लीजिए। धीरे-धीरे हमारे इंडिया से कई हैं, एनआरआईज़ भी हैं, तो मैं तो ये मान के चलो, तो उसमें बहुत ही अच्छा साथ होगा। हम एक-दूसरे से बात भी कर पाएँगे कि कौन-सा प्रोजेक्ट कैसा है, उसमें हिस्सा ले पाएँगे। Very, very good point. Mr. Kuldeep bro is telling that it is not just about getting all the opportunity. There are so many companies which come, and some companies they build, some companies they perform average, and some company they fall also. So but let us say if we have 10 opportunities, 10 different projects, and we have invested equally, and even one of them multiplies and goes beyond the reach of the people, then it is worth of participating into that early stage. As well as Mr. Kuldeep bro is telling that once the investment is secured by community, sorry, com priority project terms and conditions, then don't worry about the invested amount. It will not be gone into rug pull, or it will, if there is any such kind of thing, then the refund will be there, so money is secured. So always,
in both ways it is beneficial to the community, beneficial to the people, considering the investment is safe. And on the other side, if any of the project or few of the project in which you have invested, if few of them go and multiply and perform very very good, then you are done. That is the success, and you already achieved multiple profits in that way. And secondly, Mr. Kuldeep bro is telling that he knows there are so many NRIs, as well as so many Indian community who is participating, who are taking part into this opportunities, this launchpad and IDOs. So he's telling that let us come and join hands, become private partner, and let us build a community of Indian community. We can chat with each other, we can discuss with each other, we can talk about different projects, we can talk about the potential behind the project, we can judge the projects in between us, we can share our knowledge with each other, and let us make a Indian community which is interested into this field and explore this field. Thank you, Mr. Kuldeep bro. Also guys, if anybody is having some question in between, don't please just listen, you can come and ask the questions also. So let me open the mic for, I will mute myself, and anybody please come on mic and you can ask anything related to Communitas as well as not related to Communitas, anything you can ask. Please, I will mute and I will wait. मैं एक बात और बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों को कि मैं पहला मेंबर नहीं हूँ अपने यहाँ इंडिया से। देखो, मैं जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक और साथी है जिसने मेरे को, वो ऑलरेडी प्राइवेट मेंबर है, हरदीप भाई, उसने मेरे को बताया था। और हमने ऑलरेडी जितने हमने डॉलर लगाए थे इस कम्युनिटास के ये जो टोकन खरीदने में और स्टैकिंग पे, वो हमने हासिल कर लिए। स्टिल हम हैं 5 लाख जो कॉम हैं वो ऑलरेडी स्टैकिंग पे हैं। रिवार्ड के थ्रू जो हमने प्राप्त किए थे उन्हीं से हमने जो हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी ऑलरेडी निकाल ली है। Very good point. Mr. Kuldeep bro is sharing that uh, he is not alone Indian who is taking part into this private membership, but there are other Indians as well. Like he said that he has his friend Mr. Hardeep Harchal. I also know him. He is the one who introduced Mr. Kuldeep to Communitas Launchpad, and then he participated and became private member. And after becoming private member, Mr. Kuldeep bro is telling that whatever stacking reward he has earned from stacking of COM token, he participated from that amount, from that earned token, from whatever he earned by stacking the COM token, from that amount he participated into IKO, and he already recovered his invested amount by doing this activity repeatedly. In within one year, he has already recovered his invested COM tokens money and participated in IDOs from the money which he got by as a stacking reward. Yeah, thank you. Please, mic is open. किसी भी भाई का कोई सवाल है या फिर वो कोई जानकारी चाहता है तो वो पूछ सकता है, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में किसी भी प्रोजेक्ट में आते हैं तो तरह तरह की हमारे अंदर दिमाग में ये बातें होती हैं, अगर ये ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। आप ये मान के चलो, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जिसके बारे में हमारे देश के अंदर अवेयरनेस नहीं है, हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक जो डर है ना, मेरा भी था, आप लोगों की मैं बताता हूँ, 6 महीने या 7 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन अभी मैं ये लग रहा है कि अगर मैंने ना किया होता तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया होता। मैं स्पोर्ट में हमेशा मार्केट के अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग करता था। लेकिन उसमें देखो, मेरे को अभी तो जानकारियाँ हो गई हैं। नया इन्वेस्टर कोई भी उससे जुड़ता है तो उनको ये नहीं पता होता बुल रन कब आएगा,
क्या टी क्या होता है, किस पॉइंट पे इसको बेचना है, कब जाके खरीदना है, यानी कि कुछ नहीं पता। वो वैल्यू जो हम लगाते हैं उससे भी डाउन चली जाती है, फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, निश्चित हो जाओ, स्टैकिंग रिवार्ड से ही हमारी वापस इन्वेस्ट निकल जाएगी। और सेकंड ये है, धीरे धीरे कॉम की जैसे जैसे बर्निंग हो रही है उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बल्ले बल्ले है दोस्तों, शुरुआती प्रोजेक्ट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बहुत कुछ अर्न कर पाओगे। So, guys, Mr. Kuldeep bro is telling that uh, don't shy, be outspoken, please. You can talk, you can ask. There will always be some doubts when there is something new. We have doubts, we have questions, so you can talk about that one. You can ask. We are like a community. We are like friends with each other. We are like brothers and sisters to help each other to uplift our community. So he is telling that please don't be shy. You can talk, you can ask with us, and don't be shy about that one. And as well as he's telling that uh, if uh, if you take entry into early stage of the project, then there are so many opportunities which you being a trader, if you don't know the technical analysis, if you don't know, if you don't follow nobody knows when the bull run will come, nobody knows when bear market will come. So that is a separate thing of doing trading. Apart from that one, if you are into IDOs, and especially when your token, you have a priority terms and conditions, and then don't worry, it is all balle balle. You can just enjoy the rewards, stacking rewards, plus as far as there is burning, and the com token price will go high and high, so there is always earning from both sides. यस कुलदीप जी, अभी केतन जी फिर से ज्वाइन हुए थे, मगर आई थिंक उनका नेटवर्क का ही इशू है। और यहाँ पे मैं, रिंकी जी भी ज्वाइन है, कई लोग ज्वाइन हैं जो पहले भी ज्वाइन करते थे, और न्यू मेंबर्स भी ज्वाइन हैं काफी सारे। मिस्टर पुगल, मिस्टर नंदू, मिस्टर संजय, एंड आई एम नॉट या मिस्टर वरदराजन, मिस्टर या there are so many members who have joined. So Mr. Sanjay also, please come on mic, please share your thoughts about market and your thoughts about crypto as a whole. So mic is, I will mute my mic. Anybody please come and please share your thought. What do you think about uh, the bottom of Bitcoin? What do you think? Is it is still, it will go down, or this is the bottom, 29, 28,000 is the bottom, or it will go more down? हेलो। जी संजय जी, हाँ जी आपकी रिजवान जी आवाज आ भाई, रही कैसे हो जी? हाँ जी, कैसे हो जी? है। बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हो? वेलकम अच्छा, संजय नहीं। जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। अच्छा, नहीं, मेरे को ये एक जानना था। ज जैसे अभी ये लूना ने सबको चूना लगा दिया, वैसे इसका तो कॉम का तो ऐसा कुछ होगा नहीं? ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था मैं। बहुत सही बात है, जैसे लूना ने चूना लगा दिया वैसे तो नहीं होगा। देखिए लूना का जो, लूना का ये जो चीज है ना, देखिए मैं अगर यहाँ पे इसको, इस ये चीज है ना, पूरी क्रिप्टो मार्केट को हिला देने वाली है। ये इतना बड़ा इंसिडेंट क्रिप्टो की मार्केट में कभी आज तक हुआ ही नहीं, जितना बड़ा लूना का इंसिडेंट हुआ। उसका ना मेन रीजन यहाँ पे जो मुझे लगा कि इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता अगर लूना इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। लूना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, एंड उसके साथ में जब ऐसा हुआ,
तो उसने बड़े-बड़े ट्रेडर्स को भी हिला दिया है। बहुत से लोगों ने तो ट्रेडिंग ही बंद कर दी है। मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत से लोग जो है यूएसटी के अंदर जो उसका स्टेबल कॉइन था यूएसटी, उसमें उन्होंने अपने सारी ट्रेडिंग बंद करके यूएसटी की तरफ गए थे, लेकिन काफ़ी उनको जो है दिक्कत का सामना, बहुत सैड स्टोरी है। अब यहाँ पे देखना ये है कि लूना के साथ में जो हुआ है वो एक्चुअली संजय जी, जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो ये है इसके ऊपर कि देखें, ये एक टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड है और टेक्नोलॉजी में ये होता है कि अपग्रेडेशन होता ही रहता है। कोई भी आप किसी कंपनी की वेबसाइट ले लीजिए या किसी ज़ोमैटो का एप्लीकेशन ले लो या आप ओला को ले लो, हर चीज़ में अपग्रेड आता है, हर चीज़ में चेंजेस करनी पड़ती है, हर उसमें बग का या उसमें कोई लूप होल का चांस रहता है, नो डाउट उसमें। अच्छा, अब यहाँ लूना प्रोजेक्ट के जो टीम है और ख़ास तौर पे जो उसकी लीडरशिप है, उसकी अगर आप बात करें, तो वो उनमें जो है क्रिटिसिज़्म का और अ, जो होता है ना कि अगर मान लो मुझे कोई सजेस्ट कर रहा है, तो मैं उसको पॉज़िटिव नहीं लेके मैं उसको नेगेटिव लूँ और उसको एज़ अ इंसल्ट महसूस करूँ। ये चीज़ थी उनकी मेन टीम के अंदर में, ख़ास तौर से उनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर। जो उस उस पूरे प्रोटोकॉल में लूना के अंदर जो जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है, डीपैग हुआ, उसको पहले भी कई ऐसे डेवलपर्स और जो ऐसे दिग्गज इस लाइन के लोग थे, उन्होंने इसको रेज़ किया था कि ये इसमें ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन सुना नहीं गया क्योंकि हाइप बहुत बन गई थी लूना की। लूना जो है कंटीन्यूअसली जो है वो प्रोग्रेस करता जा रहा था प्राइस के हिसाब से। उसका प्राइस दिन-ब-दिन, क्योंकि वो स्टैकिंग उन्होंने ऐसा रखा हुआ था। तो एक चीज़ ना ये कारण बनता है, बड़ी-बड़ी लूना ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट ले लो या आप रियल लाइफ में कोई कंपनी को ले लो संजय जी, बहुत सी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, मान लीजिए नोकिया को ही ले लीजिए। बड़ी कंपनी का एक वो दौर चलता है, लेकिन अगर वो अपने डोर्स को ओपन नहीं रखते, सजेशंस के लिए अपने डोर्स को वो ओपन नहीं रखते, क्रिटिसिज़्म या उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट के बारे में अगर कोई बात करे, उन चीज़ों के लिए अगर ओपन नहीं रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, किसी भी टीम का, किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे क्रिप्टो का प्रोजेक्ट हो या किसका भी हो। देखिए, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की टोटल जो चीज़ है, बड़े इन्वेस्टर की उस हिसाब से आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी की टोटल इंडस्ट्री ही ऐसी है कि इसमें आप, ये कहा जाता है, एक स्लोगन है कि नेवर इन्वेस्ट और नेवर पुट अ अमाउंट व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़। कभी भी उस अमाउंट के साथ में मत खेलो जिसको आप लूज़ करने को अफोर्ड नहीं कर सको। तो ये स्लोगन लाइन हमेशा ध्यान में रखनी। इवन मैं क्रिप्टो करेंसी में, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बिल्कुल ओपन होके बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कम्युनिटास का मॉडरेटर हूँ, लेकिन मैं उसके बावजूद मैं बात ओपनली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर खुद भी जो है मैं खुद उसके ऊपर ही चल रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का क्रिप्टो करेंसी के अंदर जस्ट 20% है। मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का, यानी मान लीजिए अगर मैंने स्टॉक्स में किया है या गोल्ड में किया हुआ है या रियल एस्टेट में किया हुआ, तो मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% इज़ इन क्रिप्टो व्हिच आई कैन अफोर्ड टू लूज़। सो ये चीज़ तो हमको पकड़ के ही चलनी है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम जो है एकदम फुल्ली ट्रस्ट करके, लेकिन जहाँ तक है कि जो लूना के साथ में जो कुछ हुआ, क्या कम्युनिटास के साथ में हो सकता है? देखें, डेवलपमेंट और ये प्रोग्रेस की चीज़, चेंजेस करने की चीज़ जो है, ये चीज़ को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तरह-तरह के स्कैम होते हैं, इवन टेलीग्राम में हो जाता है। मेरे साथ में खुद, जब मैं शुरू में एंट्री किया था, तो मेरे साथ भी स्कैम, लेकिन उनसे लर्न करना, उनको करेक्ट करेक्ट करना और आगे बढ़ना। अगर टीम के अंदर आप ये चीज़ देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा करके आप चल सकते हैं। क्या वैसे ये रूम चल रही, सोल का भी रूमर चल रहा है बार्सिलोना का, उसका भी रूमर चल रहा है। जी,
इसके र्यूमर के बारे में सोलाना का भी र्यूमर चल रहा है। इवन यूएसडीसी से संजय जी, बहुत से लोग यूएसडीटी से भी डर गए थे जिस दिन डीपैग हो रहा था यूएसटी। तो यूएसडीटी का प्राइस भी बहुत खतरनाक था, बहुत बहुत देखिए, सबसे बड़ा मार्केट कैप यूएसडीटी का है। तो अगर जो चीज उसको भी हिला सकती है, ऐसा इंसिडेंट था कि उसने यूएसडीटी को भी, बिटकॉइन को तो छोड़िए, बिटकॉइन की तो बात ही नहीं करिए, उस जब यूएसडीटी डीटी हिल गया था। और फिर सोलाना के बारे में जो अभी चल रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सोलाना में वो वाला प्रॉब्लम होगा जो लूना में हुआ था। वो डिफरेंट केस था लूना का, डीपैगिंग हो गई थी उनके, दोनों कॉइन ही उसके अपने थे। देखिए, डीपैग करने में जो कोलेटरल के लिए अनदर टोकन होना चाहिए, दोनों सेम प्लेटफॉर्म का नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक डिफरेंट कंसेप्ट पे उसको बिल्ड किया है लूना को। तो वो एक इनोवेटिव है अपनी सोच में, लेकिन अब ये है कि सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब उसमें वो मॉडिफिकेशंस करेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। इसके बारे में कुलदीप जी, आपकी क्या राय है लूना के बारे में? और ये जो सारा कुछ हुआ, संजय जी बता रहे हैं कि सोल के साथ में भी ऐसी र्यूमर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कुलदीप जी के बारे में मैं संजय जी आपको बता दूं, ये प्राइवेट इन्वेस्टर है कॉम्निटास के। काफी समय 6-7 महीने से प्राइवेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉम्निटास के लॉन्च पैड के ऊपर। कई सारे, तकरीबन हर आईडीओज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑलरेडी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट रिकवर करके जो स्टैकिंग से इनको रिवार्ड मिले थे उसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो मूव टू अर्न प्रोजेक्ट का अभी जो हाइप आप देख रहे हो संजय जी, इसके बारे में हमारी जो पिछले संडे से पिछले 2 संडे छोड़ के पीछे संडे को कुलदीप जी ने वॉइस मीटिंग में मॉर्निंग को हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मूव टू अर्न प्रोजेक्ट का हाइप आने वाला है, इसके बारे में कुछ करिए, इसके बारे में कुछ सोचिए। इन्होंने रॉबी सर को भी सजेशन डायरेक्टली दिया था। और आप देखिए कि वाकई में मूव टू अर्न प्रोजेक्ट का ऐसा हाइप आया। देखिए, मार्केट के ट्रेंड के साथ में चलना चाहिए संजय जी, जो चीज का ट्रेंड चल रहा हो ना मार्केट में, उसी लहर के साथ में होना भी बहुत जरूरी है। ट्रेंड को पकड़ के चलना चाहिए, और उसको हमने पकड़ के चला। मूव टू अर्न कई प्रोजेक्ट आए, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है टोकन के प्राइवेट पब्लिक सेल के साथ साथ में, एनएफटी के साथ में भी। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था अपने हिंदी ग्रुप में कि कितने हैप्पी थे कई हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इवन अभी आज की मीटिंग में नहीं आए, मिस्टर आईडीओ करके एक हैं, उन्होंने अपनी एनएफटी को अराउंड 40 एक्स के ऊपर बेचा था एनएफटी को, 40 गुना प्राइस ज्यादा उनको अपने सेल प्राइस से मिला था। तो ये होता है क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। कुलदीप जी आइए माइक पे, संजय जी आप भी आइए। हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ, सुन रहा हूँ आपको मैं। संजय जी, यहाँ पे मैं कुलदीप जी की जो उन्होंने पहले बात की थी, शायद आप वो टाइम पे नहीं सुने थे। कुलदीप जी की एंट्री जो है इसमें कॉम्निटास के लॉन्च पैड पे कैसे हुई, क्या हुई, वो सारा उन्होंने हमारे साथ में भी साझा किया। तो वो बता रहे थे सर कि सर सर मैं जी 2-3 मिनट के बाद आराम इत्मीनान से बात कर पाऊंगा। अभी ऑन रोड था तो मैं बैठ के, अभी तो डिस्टरबेंस होगी सराउंडिंग्स जो भी हैं। कुलदीप जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सर अच्छा होगा कि जब यानी जी मैं 2-3 मिनट के बाद ज्वाइन करता हूं सर, तब तक आप कंटिन्यू रखिए। ओके। तो यहाँ पे संजय जी, मैं जो है यही बताऊं, आज की जो हमारी मीटिंग जो है इसमें जैसे कि हम एवरी संडे को मीटिंग रखते हैं, ये वॉइस चैट जो अपनी चल रही है संजय जी, ये एवरी संडे को एक्चुअली होती है, लेकिन अब जो है इस बार से मैंने इसको चेंज करके सैटरडे इवनिंग कर लिया। वो इसलिए क्योंकि संडे को बहुत से लोग घूमने चले जाते हैं और मॉर्निंग का टाइम सही नहीं होता है, क्योंकि बिजी टाइम होता है, छुट्टी का दिन होता है, फैमिली के साथ में एंजॉय करने का टाइम होता है। यही सब सोच के मैंने इस सैटरडे को रख लिया। और इसमें इस मीटिंग में ना संजय जी, जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स हैं कम्युनिटास के लॉन्च पैड पे, जो रियल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको जो है मैं इनवाइट करता हूँ। आज जो है मैंने यहाँ पे मिस्टर रॉबी को भी डायरेक्टली इनवाइट किया हुआ है इस मीटिंग में, लेकिन हो सकता है कि वो उनको बहुत सी मीटिंग लेनी होती है, प्रोजेक्ट्स के साथ में मीटिंग, वीसीज के साथ में, अदर लॉन्च पैड्स के साथ में। तो
हो सकता है अगर उनके पास टाइम निकला तो वो आएँगे, नहीं नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कभी तो उनको जो है यहाँ पे हम लेके आएँगे डायरेक्टली। और जो है दूसरी चीज़ ये कि संजय जी आप जो पूछ रहे थे आपका क्वेश्चन जो है रह गया था, तो आप आ जाइए माइक पे। नहीं, नहीं, मैं ये पूछना था, ये कॉम्पिटस जब लॉन्च हुआ था तो किस प्राइस में लॉन्च हुआ था? अब लेना हो तो कभी ले सकते हैं और क्या प्राइस तक ले सकते हैं? कॉम्निटास आज से करीब 14 मंथ्स अगो लॉन्च हुआ था, 14 महीने पहले 0.0001 के रेट पे इसका जो है प्री सेल चला था 0.000 सॉरी 1 1 नहीं 0.001 के रेट पे ऐसा वो हुआ था प्री सेल, और उसके बाद में 15 या 18 के रेट पे, नहीं थोड़ा सा प्राइस ज्यादा था, उसके ऊपर जो है लॉन्चिंग हो गई थी। तो अब जो है देखें, अगर आप मुझे एज अ इन्वेस्टर, एज अ एनालिटिक्स पूछ रहे हैं, तो देखें कॉम्निटास की एक जंप उसने बीच में लगाया था जब हमने अपना लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिया था। उस टाइम पे टोकन जो है बड़ी लोगों के अंदर हाइप बनी थी, और वो टाइम पे अगर आप फुल टाइम चार्ट देखोगे कॉम्निटास का, तो बीच में एक एक पंप लगाया। वो शुरू में जो है जब लॉन्च पैड एक्टिवेट हुआ था, तो सडनली उस टाइम पे कई बहुत सारे लोगों ने जो आईडीओज में पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, और ना अनफॉर्चुनेटली संजय जी, उसमें ज्यादातर रशियन यानी बाहर कंट्री के यूएसए और बाहर के ही लोग ज्यादातर होते हैं। हमारी तरफ इतना क्रेज नहीं, अगर क्रेज है भी तो हम अदर जगह जो है वो कर लेते हैं। तो उसमें वहां पे जो है प्राइस ने एक पंप लगाया, लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट भी डाउन आई है, और प्राइस भी साइमल्टेनियसली मार्केट को फॉलो करते हुए डाउन ही आया है। तो अगर उस हिसाब से पूछेंगे तो प्राइस जो है अभी तो बिल्कुल पिकअप पॉइंट के हिसाब से अगर पूछेंगे तो प्राइस इज ओके। अदरवाइज आप जो है डीसीए भी कर सकते हैं, कुछ खरीद के फिर बाद में कुछ खरीद के बाद में कुछ खरीद के, इस तरीके से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। तो ये एक आप स्ट्रेटजी इसमें जो है लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ, ये कम्युनिटी मॉडरेटर होने की वजह से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो मैं जान रहा हूँ कम्युनिटास के बारे में, मैं उस पर्सपेक्टिव में आपसे के साथ में साझा कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि कम्युनिटास के ऊपर डिफरेंट यूज़ केस आएँगे। यूज़ केस का मतलब और अलग-अलग काम आएँगे। अभी सिर्फ क्या है कि स्टैकिंग करके लॉन्च पैड में पार्टिसिपेशन है, ठीक है? दूसरा एक काम क्या आ गया कि एनएफटीज खरीदी जा सकती है। तीसरी चीज आने वाली है कि कम्युनिटास अपने गेम्स लॉन्च करेगा। अब आप देख ही रहे होंगे कि कम्युनिटास की ग्लोबल ग्रुप के अंदर कम्युनिटी करीब 1.5 लाख के आसपास होने वाली है। देखिए, गेम बनाना और लॉन्च करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट ये काम करते हैं, गेम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। मगर क्या है ना कि कॉम लोगों का होना बहुत जरूरी। कम्युनिटास के पास दिग्गज किस्म के करीब 600 प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं। प्राइवेट पार्टनर्स का जो ग्रुप है उसमें करीब 550 से 600 लोग वो हैं जो 5 लाख नहीं बल्कि 8 लाख 10 लाख कॉम टोकन जो स्टैकिंग करके उन्होंने वो आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने किया हुआ है। तो वो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो करीब 550 600 के आसपास। तो उनको जोड़ लीजिए, प्लस 1.5 लाख की अपनी ग्लोबल कम्युनिटी है। साथ ही साथ कम्युनिटास की अगर आप जो क्रिप्टो से जुड़े हुए जो पार्टनरशिप हम लोगों ने कर रखी है, अगर आप उसको देखेंगे तो करीब-करीब 250-300 तो कम्युनिटीज़ आप ऐसी क्रिप्टो की निकाल लेंगे जो टेलीग्राम पे या किसी न किसी तरीके से यूट्यूब पे या किसी न किसी तरीके से और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे क्रिप्टो से जुड़ा काम करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पार्टनरशिप का होना, और एक अच्छा, सिर्फ संजय जी ये पार्टनरशिप नहीं है। हमारा स्टाफ आप देखोगे तो करीब-करीब जो है 25-30 का तो ऑफिशियल स्टाफ आप देखते हो, जो ग्लोबल ग्रुप में आपको दिखता है कि 25-30 लोग हैं। उसके अलावा करीब 50-60 जो हैं, जो इसमें आप नाम नहीं देखते हो, जो बैकग्राउंड में काम करते हैं कम्युनिटास पे। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी, साथ ही साथ वीसीज़ के साथ में जो पार्टनरशिप है वो अलग है। तो जब गेम सही
तरीके से रोल आउट आप यही महीने में देखने लगोगे कि गेम्स आने लगेंगे कम्युनिटास के। तो कॉम का यूज केस और बढ़ जाएगा। लोग जो गेम में इंटरेस्ट नहीं लेते वो भी इंटरेस्ट ले। मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ गेम खेलने के लिए। पहला गेम तो मैं खुद उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि मैं खुद भी प्ले करूंगा। हालांकि मैं प्ले नहीं करता, बट आई विल बी वेरी मच हैप्पी टू प्ले गेम्स, यू नो। मैंने अभी तक क्रिप्टो गेम्स नहीं यूज किया है, लेकिन मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड। So like me, there are so many people who are excited to play games, Sanjay ji. So the use case is really very important to get strong support from the pupils like you, like me, like everybody. So we have very strong community, very strong people with us. सो आई थिंक आने वाले टाइम में संजय जी आप देखोगे कि ये सारी चीज जो है कम्युनिटास को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसका फाउंडेशन बनेगा। और प्राइस जो है वो दूसरी तरफ, ये तो एक चीज हो गई जो यूज केस की तरफ से हो गई। दूसरी चीज ये कि 95% ऑफ द सप्लाई जो है वो हम ग्रेजुअली बंद कर देंगे। यानी जो टोटल सप्लाई है उसका 95% गया, सिर्फ 5% सप्लाई का बचेगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है जो हम एवरी मंथ करते हैं बर्निंग। तो ये सारी चीज हो गई। Okay, sorry guys, let me welcome Mr. Robbie, CEO of our Communitas Launchpad is here, joined us with our voice chat. I am very much happy. I welcome Mr. Robbie to our voice chat. Yeah, hi, hello, Mr. Kamar. Yeah, thank you. I mean, I'm observing and monitoring. You guys can continue, or if you have any question, then I will be more than happy to answer that. So Mr. Robbie is with us. Mr. Robbie ने ये कहा कि मैं अभी सर्फिंग कर रहा था, सर्फिंग करते करते मैं देखा कि हाँ वॉइस चैट शुरू हो गई, तो मैं आ गया। तो मिस्टर रॉबी ये बोल रहे हैं कि आप लोग आपस में बात कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं जो है उसका आंसर दूंगा। सो आई एम वेरी मच हैप्पी टू सी मिस्टर रॉबी हियर विद अस। सो गाइज, हम यहाँ पे बात कर रहे थे संजय जी के सवाल के ऊपर कि किस प्राइस पे लेना ठीक रहेगा, किस प्राइस पे लेना ठीक नहीं रहेगा। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे मैं बता दूं मिस्टर रॉबी जो है इज वेरी मच एक्टिव पर्सन आई हैव सीन इन माय होल लाइफ। सो जब इस लीडरशिप इतनी स्ट्रांग हो संजय जी, आप खुद देख लीजिए कि कितनी सारी मीटिंग, कितने सारे अनाउंसमेंट होते हैं डेली डेली, क्या क्या कम्युनिटास का लॉन्च पैड करता रहता है। तो ये लीडरशिप का स्ट्रांग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, हमारा पूरा सिस्टम ऐसा डिजाइन है कि उससे हट के लोग काम ही नहीं करते। यानी किसको क्या काम करना है वो हर एक को पता है। तो अगर आप ग्लोबल ग्रुप देखते होगे संजय जी, या अनाउंसमेंट चैनल देखते होगे, और मेरे हिसाब से आप काफी समय से हमारे साथ जुड़े हो, तो देखे ही होगे कि कितना एक्टिवनेस है और कितना एक्टिवली हम लोग जो है डेली डेली जो है लोग अवेयरनेस भी करते हैं और काम भी बढ़ाते रहते हैं। जी संजय जी, आप आई थिंक आप सुन रहे हैं, माइक पे आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी। संजय भाई, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। एक मेरे हाँ, बोलिए। केशव अग्रवाल जी हैं, हरदीप भाई हैं, मैं हूं। तो यानी कि हमारी पार्टिसिपेशन को प्राइवेट मेंबर के तौर पे बढ़ रही है धीरे धीरे। हम जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं, जैसे अभी किसी ने पूछा कि कितना मार्केट आ सकता है, कॉम की प्राइस कहाँ तक जा सकती है। मेरा तो ये मानना है कि कॉम एक ऐसे स्पोर्ट जोन के अंदर है, इससे नीचे चांसेस हैं, मैं मानता हूँ मैक्सिमम 10 से 15% डाउन के। लेकिन बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से बिटकॉइन है वो इस महीने के अंदर बिल्कुल किसी को कैच नहीं होगा, वो फ्लाई हो जाना है। जो उसका बॉटम है वो आने वाला है 23,500 से 25,500 के इन बिटवीन लास्ट डंप। उसके बाद बीटीसी किसी के हाथ नहीं आएगा। अगर बिटकॉइन किसी के हाथ नहीं आएगा तो ये समझ सकते हो एक डिसेंट्रलाइज हमारा कॉम जो एक वो है टोकन है, कॉम एक लॉन्च पैड है। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट
जो हैं प्रायोरिटी के तौर पे हमारे लॉन्च पैड के ऊपर आएँगे और इनकी वैल्यू सेकंड ये है कि 95% अगर बर्न हो जाएगी, हर महीने बर्न हो रही है, तो सोच के चलो जो एक टोटल सप्लाई का 95% हटा दिया जाए, 5% खाली रह जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो जानी है। हाँ जी, तो एक कुलदीप भाई, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। एक संजय भाई मैं ये भी बताना चाहता हूँ जैसे मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, मैं खाली स्पोर्ट के अंदर स्पोर्ट ट्रेडिंग करता था, इसके अलावा मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। मैं इसके अंदर लॉन्च पैड के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री हुई, प्राइवेट सेल्स हैं, आईक्यू हैं, आईडीओज़ हैं, उसके बाद पब्लिक सेल हैं। मेरे को कुछ नहीं पता था कि कैसे किसी प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद कैसे उनको हमें वापस वो 10% टीजी जो इसका टोकन जनरेशन इवेंट होता है, किसी का 20 है, उसको कैसे अपने जैसे मेटामास्क के थ्रू इसके अंदर कोई भी है, वो जॉइनिंग होती है। मोस्टली सबसे अच्छा है मेटामास्क, डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है। मेरे को तो इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो कॉम की जो टीम है और ये रॉबी सर हैं, इतने ज़्यादा मेहनती हैं, हर बात को आप कितनी बार पूछो आपको जवाब मिलेगा। यानी कि वो समझाएँगे आपको। तो सबसे अच्छा तो ये लगा इनकी जो लीडरशिप है वो माइंड ब्लोइंग अवेसम है। इसीलिए मैं कहता हूँ देखो जाने को तो लूना ने बहुत ज़्यादा लोगों को चूना लगाया है, लेकिन ये हमारे देश में भी तो होता रहा है। जैसे पल्स कंपनी थी, कोई बैंक था, वो उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया गया। लाखों इन्वेस्टर के जो फंड थे, मनी थी, वो चले गए, कोर्टों के अंदर केस चल रहा है, सहारा का एक प्रोजेक्ट था। तो ये हर जगह है ऑल ओवर वर्ल्ड, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपना इन्वेस्ट करना छोड़ दें। तो एक इक्का-दुक्का प्रोजेक्ट की वजह से हम पूरे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हम सवालिया निशान नहीं लगा सकते हैं। और रही बात सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, उसके ऊपर हमारी भारतीय सरकार या कोई भी सरकार है, उन एक्सचेंज के ऊपर बाउंडेशन लगा सकती हैं। लेकिन ये एक डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, मेटामास्क, उसके थ्रू ही एक कम्युनिटास लॉन्चपैड है। तो सरकार की ये हमें डर हो कि 30% तो सरकार ले लेगी, हमें कहाँ से क्या मुनाफ़ा होगा। अरे हमने एक बार डालना है, किसी से आजकल P2P ऑप्शन है। आप एक ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये शो करो कि हम ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए डाल रहे हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मेटामास्क के अंदर रहेगा तो डोंट वरी, आप ये सोचना ही मत कि सरकार हमसे कुछ लेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि एक हम अच्छे नागरिक होने के नाते अगर हमें अर्निंग होती है, जहाँ तक एक तो सेकंड व्यू ये है कि सरकार समय के साथ बदलाव लेके आएगी। अभी बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग का सरकार ने गैम्बलिंग घोषित कर रखा है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर कंप्यूटर आया था वेब 2 यानी कि तब भी सरकार ने कंप्यूटर को मानने से मना कर दिया था। धीरे-धीरे जो पश्चिमी देशों की है सभ्यता है वो अडॉप्ट करते गए। सरकार ने फिर आज के दिन सबसे ज़्यादा इंजीनियर हमारे ही देश के हैं, तो सरकार धीरे-धीरे इसको अडॉप्ट करेगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो तब अचानक इतना हाइप क्रिएट होगा और मार्केट कहाँ से कहाँ जा चुकी होगी, तो हम चाहेंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएँगे। शुरुआती दौर में अगर किसी चीज़ के आते हैं, तो बेनिफिट लेते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है, किसी का कोई डाउट है वो क्लियर कीजिए। आपको बताने के लिए रिजवानी सर हैं, उसके बाद हमारे जो कम्युनिटास के सीईओ हैं, तो वो भी ऑलरेडी आए हुए हैं। बहुत बारीकी से काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी आपका अनुभव जो भी है, आपकी थिंकिंग है, आपका जो विचार है, वो व्यक्त कीजिए संजय जी। हाँ, तो अब तक टोटल कितना % कॉम बन हो गया है? पानी भाई जी कुलदीप जी, मैंने क्वेश्चन सुना इसका। ये इसका सारा संजय जी जो कॉम बर्निंग का सारा रिकॉर्ड है वो तो यानी कि हाँ, एवरी अनाउंसमेंट में आता है कि कितनी सप्लाई बर्न हुई, उसको देखना होगा। इसका इमीडिएटली आंसर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसको देख के जो है बताना होगा। लेकिन ये मान लें मोटा मोटा जो है करीब 3 इंटरवल्स हो चुके हैं जो टोटल 95
95% जो सप्लाई को जो बंद करना है उसके 3 सेक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके पहले जो है हम सोशल एंगेजमेंट बर्निंग एवरी मंथ करते आए हैं। सोशल एंगेजमेंट बर्निंग संजय जी ये होती है कि कम्युनिटास के जो ट्विटर का प्लेटफ़ॉर्म हो गया और मीडियम का और अ फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो अकाउंट्स हैं, उन पे जो मंथली ग्रोथ हमारे ऊपर आती है, यानी कि जो जितने लाइक, रिट्वीट्स वगैरह वो सबको कैलकुलेट करके उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉम टोकन जो है वो बर्न किया जाता है। इसीलिए देखे होंगे आप हम हर अनाउंसमेंट के साथ में ये लिखते हैं कि प्लीज़ लाइक, रिट्वीट एंड कमेंट टू बर्न कॉम। यानी कि लाइक रिट्वीट एंड कमेंट करके आप कॉम बर्न करते हैं, यानी वो जब आप लाइक रिट्वीट जाता है तो काउंट हो जाता है बर्निंग के लिए आगे, जो हर महीने बर्निंग होती है, सोशल एंगेजमेंट बर्निंग। और ये जो इसका फिगर है जो 95% सप्लाई जो डीएक्स लॉक से जो अनलॉक होता है टोकन जिसको हम बंद करते हैं एवरी मंथ, उसके 3 इंटरवल्स हो चुके हैं। परसेंटेज में कितना है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। और लेट मी आस्क मिस्टर मैं रॉबी। जी रिजवानी सर, मैं बता पाऊंगा क्योंकि ये मैंने प्राइवेट मेंबर हूँ। मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर अनाउंस किया गया था, ये जो वैल्यू 95 है वो 18 महीने के अंदर होनी है, तो 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं हमें। जी बिल्कुल। सो ओके, ओके उसी जी, हिसाब ओके। से जी। तो ये चीज हो गई। और साथ ही साथ कुलदीप जी ये भी है कि जो सोशल एंगेजमेंट बर्निंग है वो भी हर महीने होती रहती है। अभी देखिए पिछले ये महीने में यानी कि लास्ट मंथ में हम अराउंड 37 लाख डॉलर के इक्विवेलेंट अमाउंट का कॉम टोकन बर्न हुआ था अराउंड समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट द नंबर। कुलदीप जी अगर आपके जहन में हो फिगर, मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो देखा था 3700,000 समथिंग बन रहा था वो। हाँ सर, ऐसा है। एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता है। बिल्कुल आप अराउंड बोल रहे हो, इसी के आसपास था। तो अगर ये लगता है कि अगर इसी हिसाब से कम्युनिटी बढ़ती रही, लाइक रीट्वीट होते रहे, तो इसकी सप्लाई बहुत ही कम रह जानी है और इसकी जो एक हाइप क्रिएट होगी। एक लॉन्च पैड की, बहुत सारे लॉन्च पैड मैंने देखे हैं, उनके ऊपर अगर हम पार्टिसिपेट करना चाहें किसी भी आईडीओ में, किसी भी प्राइवेट सेल के अंदर, तो हमें कम से कम $10,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, स्टेकिंग पे डालने पड़ेंगे। लेकिन आज के दिन अगर हम कॉम्युनिटास के बारे में सोचते हैं, तो 5 लाख कॉम वैल्यू आज के दिन 0.0023 के आसपास है। तो ये मानो कितने डॉलर लगेंगे, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सोचोगे तो कितने डॉलर लगने हैं, ना के बराबर। और हमें सारी चीज़ हासिल हो जाएँगी। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा समय है। बाकी आप अपना खुद का व्यू रखें। अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में या किसी भी आइडियोज़ या प्लेटफ़ॉर्म जैसे हैं, लॉन्चपैड हैं, जानकारी हो तो वो अपना व्यू रख सकता है। इसकी कोई बारीकी से कोई आपको कोई ख़ामी नज़र आए तो वो बता सकता है। मेरी नज़र में ऐसी कोई ख़ामी नहीं है। आने वाले समय में द बेस्ट लॉन्चपैड बनना है, कोई दो राय नहीं है। आप 1.5 साल के अंदर आप अपनी अमाउंट भी निकाल लोगे और बेनिफिट में स्टैकिंग जितने हैं उतने रख भी पाओगे, ये मेरा मानना है, अनुभव है। ओके जी, थैंक यू जी। थैंक यू कुलदीप भाई, रिजवान भाई जी। जी संजय भाई। मैं रिंकी जी से ये पूछना चाहता हूँ। रिंकी जी, आप स्टार्टिंग से लिसनर हो, इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी प्लान अभी आपके जहन में नहीं है, तो आप अपना व्यू रखें। आई थिंक मुझे लग रहा है शायद वो माइक पे नहीं है शायद। सो रिंकी जी क्या आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो कुलदीप जी ने कहा है कि आप अपना
आप अपना जो है व्यू पॉइंट बताएं। जी, मुझे आवाज आ रही है, मैं सुन रही हूँ। अ, देखिए, मैं कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ और मैं नई-नई आई हूँ क्रिप्टो में और लेकिन मुझे इस हिंदी ग्रुप से मुझे क्रिप्टो के बारे में बहुत जानकारी मिली मिली और कम्युनिटास के बारे में तो मिली ही मिली, लेकिन मुझे क्रिप्टो के बारे में भी बहुत कुछ मैंने सीखा इससे और कम्युनिटास तो है ही बहुत अच्छा है। बस आप लोग तो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, आप लोगों को तो ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में, क्यों कितना अच्छा है कम्युनिटास और उसमें जो सीईओ साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और रिज़वानी सर जो हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं हमेशा। यानी ये जो संडे वॉइस चैट है और भी हमेशा मैं देखती हूँ कि मतलब एक्टिव रहते हैं ग्रुप में और कभी भी कुछ भी है तो आप यदि जानकारी ले सकते हैं जो नहीं समझ में आ रहा तो यानी उसका फौरन फौरन जवाब मिलता है इस ग्रुप में। कुलदीप जी भी यानी अगर रिजवानी सर कभी नहीं है तो कुलदीप सर भी दे देते हैं उसका जवाब और भी इसमें बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा संजय भाई है, जैसे हमदन है, पता नहीं है अनवर है या हमारा कोई पुगल किशोर भाई है या जो भी भाई है, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर इस प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च पैड के थ्रू वो जुड़ते हैं तो उसके लिए ग्रुप है किसी भी जानकारी को देने के लिए। अगर खाली कोई ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आता है कि कहाँ बाई करनी है, किस प्रोजेक्ट में लगाने हैं, किस कॉइन में लगाने हैं, तो उसके लिए भी बेस्ट ग्रुप है ऑलरेडी मेरे पास। तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी ग्रुप से जुड़ना है तो मेरे को डीएम डीएम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या है हम यूट्यूबर के ओके जी, चक्कर में ज़रूर जी। इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आके ना बहुत कुछ अपना फंड लूज़ कर देते हैं और यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनका काम है अब सिर्फ़ सपने दिखाना और अपनी कोई भी है वीडियो को व्यू लेके आना, लाइक लेके आना, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे पोर्टफोलियो को कितना डाउन जा रहा है, कहाँ से कोई मार्केट रिकवरी होगी। तो यानी कि मैं कुछ एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट से और अच्छे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो मेरे को डीपली हर चीज़ की बारे से जानकारी देते हैं कि कौन-सा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम के लिए अच्छा रहेगा। जी, कुलदीप जी बहुत सही आपका ये इस बात से मैं सहमत हूँ। देखें जो यूट्यूबर्स की जो बात आपने की है ना, यूट्यूबर्स का तो ज़्यादातर यही है कि वो बहुत सारे वीडियो ऐसे भी बना देते हैं। किसी का किसी प्रोजेक्ट के साथ में जानना है या दोस्त लोग हैं या किसी हिसाब से कुछ कनेक्शन है तो उसके चलते भी जो है यूट्यूबर्स वो कर देते हैं। हमको क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो है बहुत ही मल्टीपल वेज से जो है विचार करना होगा और सबसे सही ये पॉइंट है कि जो ऑलरेडी जो वो काम कर रहा हो ना आपके आस-पड़ोस में या आपके जानने वालों में, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है आर्बिट्रेज करने का, तो जो कर रहा हो उससे बात करना और उसका प्रॉफ़िट देखना और उससे पूरी बात करना, उसी से सही पता चलता है। मान लें जैसे कॉम्निटास के लॉन्चपैड के बारे इसीलिए मैं जो है कुलदीप जी को यहाँ पे इसीलिए मुझे अच्छा लगता है जब आप आते हो कुलदीप जी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको क्योंकि आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो जो कर रहे हो, मैं तो करता ही हूँ लेकिन मेरा ये होगा कि भाई ये कम्युनिटी मॉडरेटर भी है, तो मेरी बात एक अलग हो जाती है। मैं हेल्प कर सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ, कुछ डिफ़िकल्टी है उसको बिल्कुल मैं सॉल्व करूँगा, क्रिप्टो से जुड़े हो, कम्युनिटास से जुड़े हो, कुछ भी हो। मैं तो सबको अपना भाई या बहन समझ के मैं हेल्प करूँगा, लेकिन जो विचार है, तो वो जो एक थर्ड यूज़र्स हैं, उन्हीं से आपको सही मिल पाता है।
बिल्कुल रिजवानी भाई, देखो मेरा यही रहता है कि देखो जैसे मैं नया आया था, मेरे को राह दिखाने वाले भी मेरे को मिले। स्टार्टिंग 1 साल, 1.5 साल मेरा क्रिप्टो का बहुत ही खराब रहा। जहाँ भी मैं लगाता था, इन्वेस्ट करना था, वो लगा देता था। मेरे को ये नहीं पता था कि कहाँ उसको निकालना कहाँ है और किस ज़ोन के ऊपर उसको लगाना है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी मैंने सहा है। लेकिन थैंक्स टू कॉम दे उसने मेरा क्रिप्टो का जो मेरी स्पॉट ट्रेडिंग का लॉस भी कवर किया और अभी एकदम स्मूथली चल रहा है सब कुछ। I welcome Mr. NSD. How are you, bro? He's our newcomer. Before I did not see Mr. NSD. Welcome to the group, Mr. Pugal. You are listening from long time back. You are listening, Mr. Pugal. I think before we spoke, so you can share your thoughts also. ओके, सो यहाँ पे संजय जी, और कोई आपका कुछ, अच्छा आप मुझसे पहले भी एक बार प्राइवेट पार्टनर के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे बनना होता है, राइट? एक बार आपने क्वेश्चन किया था शायद। हाँ जी। जी, बहुत ये क्वेश्चन जो है, देखिए आप प्राइवेट पार्टनर बनने का जो स्टेप्स हैं बहुत सिंपल हैं। मेन ये है कि 500,000 कॉम टोकन यानी 5 लाख कॉम टोकन जो है वो कॉम्निटास की स्टेकिंग, जब यानी मेटामास्क में जाके ब्राउजर में, मेटामास्क के ब्राउजर में जाके कॉम्निटास स्टेकिंग डॉट कॉम्निटास डॉट नेट पे जाया जाएगा तो वहां पे स्टेकिंग पोर्टल पूरा खुल जाता है। उसमें V2 स्टेकिंग में जाके वहां पे टोकन स्टैक कर देना है। बस वो स्टैक हो गए, उसके बाद में आप मुझे बताइए, मैं ऐड करवा दूंगा आपको ग्रुप में। बस और कुछ नहीं करना आपको। एक बोट होता है जो ऑटोमेटिक कॉम का बोट है, जो जिससे आप जिसमें आप एड्रेस अपना डालोगे तो ऑलरेडी वो ब्लॉकचेन पे क्रॉस चेक करके फिर आपको लिंक जनरेट करके देता है। कभी कभी ये होता है कि बोट पे कैसे करना है, क्या करना है, वो दिक्कत होती है, नया नया लगता है वो बोट। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब भी अगर ऐसा आपका विचार बने तो आप मुझे जो है बोलिएगा, तो मैं आपको डीएम में कॉम का प्राइवेट ग्रुप जो है अपना, जिसमें सारी जानकारी यानी अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेल्स और पब्लिक सेल्स की जानकारी तो रहती ही है, साथ में वहां पे आपको पूरी एक कम्युनिटी मिल जाती है जो पार्टिसिपेशन भी करते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिसिपेशन भी मिल जाते हैं जिनमें कहीं आप पार्टिसिपेट किसी और तरीके से नहीं कर सकते, किसी भी लॉन्चपैड और लॉन्चपैड के द्वारा नहीं कर सकते। वो स्पेशल चीज भी आपको मिल जाती है, लेकिन वो कभी कभी मिलती है। तो ये एक लाभ होता है। बाकी और तो ऐसे कोई हार्ड नहीं है, बस यही है कि स्टैकिंग करके उसके बाद में उसमें वो प्राइवेट ग्रुप में एंट्री हो जाती है। मैं ओके, भाई को जैसा बताना चाहूँगा, फिलहाल प्राइवेट मेंबर्स 594 594 प्राइवेट मेंबर्स हैं। समय के साथ साथ धीरे धीरे अभी जैसे मार्केट के लिए बीटीसी के बारे में लोगों का एक भय है कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन एक चीज देखने वाली ये है कि मार्केट 42 42K से बीटीसी और 29K 28K 25K तक भी आ चुका है। लेकिन कॉम की जो वैल्यू है अभी ज्यादा डंप नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं, इसके ऊपर काम चल रहा है, गेमिंग के अंदर है, इसका खुद का एक सेक्टर बनेगा, गेम गेम आएंगे। तो ये डाउन नहीं है, इसके ऊपर काम चल रहा है ऑलरेडी और इसका जो टोकन है, कॉइन है, वो यानी कि बर्न किए जा रहे हैं। तो इस जिस प्रोजेक्ट पे काम चल रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन गिर रहा है, कितना गिर रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। आप इस बारे में मत सोचिए कि ये और ज्यादा डंप करेगा। ओके, ओके जी।
अच्छा, अभी अगर कॉम खरीदना रहे तो कैसे, कहाँ पे जाके अभी खरीदने का? कॉम पे जाके ही खरीदना कि कहाँ पे? मैंने सबसे पहले इंडोएक्स में परचेज किया था मैंने। देखिए कॉम जो है वो अभी तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे मैक्सी है उसके ऊपर है, लेकिन हमें इसको स्टैकिंग पे डालना है तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप मेटामास्क में जाइए और उसका एक मैटिक जो है हमारा एक नेटवर्क है, तो उसके ऊपर कॉम को ऐड कीजिए, आपको दे दिया जाएगा लिंक और उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। फिर हम यहाँ से क्विक स्वैप के ऊपर जाके अपना इसको खरीद सकते हैं और स्टैकिंग पोर्टल है ऑलरेडी कम्युनिटास का, वो लिंक दे दिया जाएगा, तो उस पे वो स्टैक हो जाएँगे। 1 महीना करना है या 3 महीने करना है, उससे आपको यानी कि परसेंटेज में बोनस के तौर पे स्टैकिंग का रिवार्ड मिलेगा। तो उसको धीरे-धीरे करेंगे तो हमारी वैल्यू भी रहेगी और वो बढ़ा अगर हम उसको 3 महीने बाद जो हमारा रिवार्ड है उसको सेल करना चाहे उस करंट प्राइस के ऊपर तो कर सकते हैं, अनस्टैक भी कर सकते हैं हम। जब भी हम छोड़ना चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, नहीं वो तो मैंने वो रिजवान जी भाई ने मेरे को करवा दिया, मैंने वो ओके मैटिक में जाके मैं कॉम टोकन ऐड कर दिया मैंने और स्टेक भी कर दिया मैंने 46,000 स्टेक किया मैंने। वो रिजवान जी भाई ने मेरे को बता दिया था पूरा। जी, 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 जी। अभी क्या क्या जानना बाकी सर, आप जो भी मतलब पूछना चाहते हो एक बार बताइए दोबारा? नहीं, नहीं अभी वही मैं बोला परचेज़ करना रहे तो कहाँ पे जाके करने का? मेटामैक्स में जाके करने का ना? हाँ, बिल्कुल मेटामास्क में जाके आप इसको बाय कीजिए और वहीं से आप स्टेक कीजिए, सबसे अच्छा है। और आपका जो है फंड भी है, देख-रेख उसके ऊपर प्राइवेसी है, बहुत सारी मेटामास्क उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आपका सेफ रहेगा वो। ओके जी। ओके जी, थैंक यू जी। इसकी बस खाली आपको प्राइवेट कीज़ हैं अपना ओ मेटामास्क का, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बस ये ध्यान रहे। हाँ, हाँ, वो तो अभी वो तो मैं कि शेयर अकाउंट में डिटेल निकाल दिए और मेरा दूसरा भी कोई जीपीओ टोकन था वो भी निकालने को किया मगर वो नहीं निकाल सका वो। सर आपकी आवाज़ बीच में नहीं आई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद? हाँ, नहीं मेरे मेटामैक्स में किसी ने एथेरियम डिपॉज़िट किए और निकाल दिए और मेरा और एक टोकन था जीपीओ करके वो भी निकालने का कोशिश किया मगर वो नहीं निकला। उसने जो ईटीएस डिपॉज़िट किया था वो निकल गया मगर वो नहीं निकला मेरा दूसरा वो कोई हैक कर दिया था किसी ने। को सर मैं बताता हूँ, हम छोटी-छोटी गलतियाँ कर जाते हैं, जैसे गिव अवे आते हैं या कोई एयर ड्रॉप आता है, अननोन वेबसाइट से लिंक हमें आते हैं, तो हम उस पे क्लिक करके अपना मेटामास्क का एड्रेस उसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है हमारा वो हैक बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी एहतियात के तौर पे ये है कि हम अपना मेटामास्क जिसके अंदर हमारा फंड है ऑलरेडी या कॉम के हमारे जो कॉइन हैं, तो उससे अगर किसी भी साइट जो है कम्युनिटास का है, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वही लिंक यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी गिव अवे या एयर ड्रॉप के चक्कर में ना पड़ें, वो हमें बहुत सारा लॉस कर सकते हैं। सही बात है आपकी, सही बात है। क्योंकि सर आजकल स्कैमर इतने हो गए हैं, जो भी जहाँ भी दिखाई देता है, भाई पता है कि यहाँ इतनी इंडस्ट्री है, इतने लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस बहुत सारे बिगिनर होते हैं, तो वो आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं और किसी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं कि उसके बाद उनको अपना सारा फंड गँवाना पड़ जाता है। सही सही बात। हाँ, अब अभी रवि जी से कुछ पूछ लीजिएगा नहीं वो टाइम से में रवि जी। रिज़वानी भाई, अगर भाई की कोई और बात है तो आप रोबी सर से कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं और ट्रांसलेट कर देंगे रिज़वानी भाई। जी भाई, बिल्कुल जो भी क्वेश्चन पूछना है संजय जी बताइए, मैं रोहित जी को बोलूँगा फिर वो आंसर कर देंगे। नहीं, नहीं अब मेरा कोई भी
क्वेश्चन नहीं, मैं सब हो गया। थैंक यू जी। So, any other guys, if you have any questions, you can, or you want to share something with us, please come on mic. Yeah. Yeah. If you have any question to me, I can answer it. So, yeah. I mean, let me give you some updates regarding communitas development for this month, the month of June. So for the month of June, we are finalizing the mini games. So we call it come and play. So for these mini games, it will have Android apps as well as for the browser. So these mini games or the games, you are free to play, so everyone can just play the game. And also there's a version of uh, pay to earn. It means that if you want to win some com token, you have to buy like the some kind of ticket, you know, and or the NFT, not NFT, but like the armor, you know, the every something. So if you are good at the games, you can pay pay that in com token, and you can earn more com token. So this is our new revenue stream. We are expecting to earn something from here, but the earning is not in stable coin, not in USDT or USDC, but it will be in com, and we will pull these rewards income, then we can give out to the staking rewards, because you know, like there are approximately almost 600 million com token in our staking, and if we give out uh, 36% APY, it means that we should have like 3% a month. 3% 1 month times 600 million, it is like 18 million. So we have to prepare 18 million com token every month for the staking rewards. Because it's only 800 million com token left, so we need to think on how we could have a new revenue model in com token. This is how the com mini games is one of the revenue model that we have. Yeah. So this is the updates that we have, and by the month of June, the com and play or the com mini games will be available to everybody. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Robbie, for sharing updates. So let me translate this one for our team. तो दोस्तों, रॉबी सर का ये कहना है, एक अपडेट दे रहे थे कि ये मंथ में जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटास के लिए, क्योंकि जून इसी मंथ के एंड से पहले पहले कोम एंड प्ले, यानी कम से बना है, कोम एंड प्ले के नाम से जो है हमारे मिनी गेम्स का जो पूरी सीरीज है, जिसमें एक शुरू में 1 और 2 गेम्स जो है वो आ ही जाएंगे इस महीने में, एटलीस्ट 1 गेम तो आ ही जाएगा, जिसमें जो है जिसको जो है प्ले किया जा सकेगा एंड्रॉइड मोबाइल्स के ऊपर, साथ ही साथ उसको ब्राउजर यानी क्रोम ब्राउजर या डेस्कटॉप के जो भी ब्राउजर में उसको जो है प्ले किया जा सकेगा। तो ये चीज जो है ये मंथ के एंड से पहले पहले आ जाएगी, ठीक है। ये एक अपडेट है जो रॉबी सर ने अभी शेयर की, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये चीज क्यों हम कर रहे हैं। तो ये दरअसल जो है कॉम की यूटिलिटी और यूज केस को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, जो कि डायरेक्टली स्टैकिंग रिवार्ड्स के तौर पे कम्युनिटी के पास ही जाएगा, यानी हमारे आपके पास ही आने वाला है, जो इस पूरे कॉम मिनी गेम से जो जनरेट होगा। अब ये होगा कि वो सारे फ्री टू प्ले गेम होंगे, यानी कि अगर मैं उसको खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरा और कोई इसका आई डोंट हैव एनी एडिशनल इंटेंशन,
तो जस्ट मुझे प्ले करना है सीखने के लिए, तो वो फ्री टू प्ले होगा। आप डायरेक्टली उसको जाके फ्रीली उसको प्ले कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरे केस में ये है कि अगर हम उसमें से कमाई भी करना चाहते हैं, तो वो उसमें जो है हमको जैसे कोई चीज़ उसमें छोटे-छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मान लीजिए आर्मर हो गया या स्वॉर्ड हो गई या इस तरीके की चीज़ें हो गई, या अगर मान लीजिए अगर रनिंग का गेम है तो शूज़ हो गए या एनीथिंग इट कैन बी, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसको जो है बाय करके यूज़ उसको फिर गेम में यूज़ करके उससे जो है हम और ज़्यादा कॉम टोकन जो है वो अर्न कर सकेंगे, प्ले टू अर्न के मॉडल के ऊपर। तो हमको बाय कर जो भी बाय करेंगे उसके लिए हम जब बाय करेंगे तो कॉम टोकन से ही बाय करेंगे, और खेल के जब उससे जो हम अर्निंग करेंगे वो भी हमें कॉम टोकन में ही होगी। इस तरीके से ये जो है कॉम की एक और यूज़ केस बढ़ेगा, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा का सारा स्टेकिंग पोर्टल में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी जिस मात्रा से, जिस परसेंटेज से हम रिवार्ड दे रहे हैं 36%, लॉन्च पैड की पूरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा स्टेकिंग रिवार्ड कहीं नहीं मिलेगा आपको। इवन जो बड़े लॉन्च पैड है उन पे तो भूल ही जाइए, उस पे 0 के बराबर आपको स्टैकिंग रिवार्ड्स मिलते हैं। वो यूज़ यानी उसके बारे में तो आप वो ही नहीं कर सकते। 36% इज़ बहुत ही हाई रिवार्ड है। उसको मेंटेन रखने के लिए या वो बहुत ज़्यादा ना हम आगे जाके कम करें, क्योंकि देखें स्टैकिंग के द्वारा जो इंटरेस्ट देना होता है तो वो हमारे पास एक पूल है स्टैकिंग का जिसमें से वो रिवार्ड जाता है। तो वो पूल जो है वो जब हम एवरी मंथ या एवरी डे हम स्टैकिंग रिवार्ड दे रहे हैं तो वो तो कम होगा ही, तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल कॉम आना चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमारे इस बिजनेस मॉडल से आएगा जो कॉम का कॉम एंड प्ले का जो ये पूरा हम इस मंथ में जो है लॉन्च कर देंगे। ये रही आपके लिए एक अपडेट गाइस जो रॉबी सर ने शेयर की। इससे जुड़ा क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। सो गाइस यानी कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ अपडेट से? मेरे मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया मीटिंग रही। काफी सारी हमने बातें की, काफी सारे अपने अपने जो है अपडेट्स शेयर किए। साथ ही साथ जो है रॉबी सर ने बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर की। ये अपडेट अभी तक अनाउंसमेंट में भी नहीं गई हुई है। ये हिंदी कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है, और अच्छी बात है कि ये अपडेट जो है रॉबी सर ने डायरेक्टली यहाँ हमारे साथ में साझा की है। अभी तक ये अनाउंसमेंट में भी नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर गाइस अपनी सारी चीज़ क्लियर हो गई है, कोई डाउट अगर अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हम जो है इस मीटिंग को यहाँ पे एंड करें। तो माइक मैं जो है म्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आ जाइए माइक पे। ओके रिजवानी भाई, बिल्कुल ही मैं भी इजाज़त लेना चाहूँगा, और किसी भाई को कोई भी कोई सवाल है, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कोई वो है तो वो पूछ सकता है। उसके लिए बिल्कुल हम हमेशा तैयार हैं। ओके, थैंक यू कुलदीप ब्रो। सो लेट अस अब इस मीटिंग को हम यहाँ पे एंड करें। लेट मी आस्क परमिशन फ्रॉम मिस्टर रॉबी, कैन वी आर डन विथ मीटिंग आवर Hindi meeting today. We have taken so many discussion. Mr. Kuldeep bro from our private group, he also joined and he shared his experience with us and with everybody. So it was very fruitful meeting. Thank you, Mr. Kuldeep, and Yeah, thank you, yeah. Mr. Thank Sanjay you. also. Yeah, thank you everybody for joining. So, thank you, Mr. Kamar, for arranging this. We hope that we can do this kind of uh, AMA every 2 weeks or once in a month, so that you guys are welcome to invite your friends. Because the discussion will be done. The discussion will be done in Hindi language. I will just be here and like to stand by and to
support Mr. Kamar, and if you have any specific question for me, I will be more than happy to answer. Because I want to be more closer to you guys. You know, like uh, I know like I'm the CEO, but I'm just the same human like you guys. So yeah, I mean, let's make friends. Let's be friends. Um, I will be more than happy to answer any of your questions. So yeah, thank you. We will try. If you have any suggestion, like to make events or giveaway or whatsoever, it will be always welcome. Please talk to Mr. Kamar regarding this, and later Mr. Kamar will discuss with me and the team. Okay, so yeah, thank you everyone. Hope you guys have a good night. Bye bye. Yeah, thank you, Mr. Okay, good. Robbie. Bye Thank bye. you. Thank you, Rijwan ji. Yeah, Thank you, Kuldeep ji. thank you Thank you, Robbie ji. everybody for joining. Thank you Thank everyone. you, And thank guys, Bye. you. guys, please listen. As Mr. Robbie told, Mr. Robbie ने जैसे कहा कि हम जो है एवरी मंथ एटलीस्ट एवरी मंथ जो है इस तरीके का ना क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, वॉइस चैटिंग रखेंगे, जिसमें जो है रॉबी सर को भी हम लेके आएंगे। तो इसमें हम जो है आपस में बात कर, देखो मैं तो ये कोशिश करूंगा कि मैं एवरी वीक रखूं। जो इन एवरी वीक जो हमारी मीटिंग जैसे चलती है, कुलदीप जी आप भी जानते ही हैं, तो हम ये कोशिश बिल्कुल करेंगे कि बिल्कुल। एवरी वीक रखें, लेकिन एक महीने में कम से कम एक बार तो जो है हम रॉबी सर को भी ले आएंगे, ताकि कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो वो उसके आंसर भी हमको मिले। रॉबी सर का कहना ये है कि मैं आप लोग का फ्रेंड हूँ, एज अ फ्रेंड जो है हम यहाँ पे और क्लोजर आना चाहते हैं आप लोगों के साथ में, इस वजह से वो जो है यहाँ पे आए। बहुत थैंक यू। मैं रॉबी सर, थैंक यू सो मच फॉर joining us, and thank you from behalf of everybody who joined. Also guys, रॉबी सर ने ये कहा कि और जो है हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे केतन जी हैं, केतन जी का नेटवर्क का आज इशू है, इस वजह से इनसे बात नहीं हो पाई, मैं इनसे डीएम में बात कर लूंगा। और जो ऐसे फ्रेंड्स हमारे होते हैं ना, कुलदीप जी, संजय जी, आप हो गए, और रिंकी जी, और जितने भी गाइस यहाँ पे ज्वाइंट है, मैं सबसे कहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो ना बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल शर्माने की कोई बात नहीं है, कम्युनिटी से जुड़ी आप डायरेक्टली पूछा करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आइए इस मीटिंग में। एवरी मंथ जो होगी, जिसमें कि एवरी मंथ में 2 मर्तबा, यानी वीक में 2 वीक में 1 बार, या मंथ में 1 मर्तबा, वो हम डिस्कस करके अनाउंसमेंट उसका कर दिया करेंगे ग्रुप में अपने। उसी हिसाब से जो है हो जाएगी अपनी मीटिंग। तो गाइस ये रहा आज की अपनी सारी मीटिंग हो गई है। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट, एंजॉय, हैप्पी वीकेंड गाइस। थैंक यू सो मच। Bye bye. Happy weekend. थैंक यू कमर भाई। ओके, थैंक यू। बाय बाय। Okay, bye bye. Bye bye, everyone.